वाहिगुरु साहिब जी। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का इह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। जन आवन का इह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। प्रगट भये गुर तेग बहादुर, सगल सृष्ट पै ढापी चादर। करम धर्म की जिन पत राखी, प्रगट करी कल युग में साखी। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी दे विच सुभाईमान साध संगत वडभागे हो। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी का 400 साला शताब्दी प्रकाश पुरब मनाउंदियां होया बड़ियां वड्डियां खुशियां सतगुरु जी की हजूरी दे विच सांझियां कर रहे हैं। अमृत वेले तो इन्हां पावन स्थानां ते दीवान सजे हन। वख-वख बुलारियां वल्लों रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਜਸ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਓ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। परमता तो पहला सतगुरु जी की बख्शी फतेह की सांझ पाओ। रसना करो पवित्र ते समूह संगत लवाओ हाजरियां। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहब महाराज जी की गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी की जदों असीं जीवनी पढ़ते हैं ते साध संगत ये कहण दे विच कोई अत कथनी नहीं। जो बचन दशमेश पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी ने अपनी रचना दे विच भी लिखे, तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन। सचमुच ही साध संगत दुनिया दे विच कोई दूजा नहीं है जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी वर्गा कारनामा इस दुनिया दे विच करके गया हो। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलू महसाका। साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी ना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर ना दिया। जदों ये धर्म शब्द पढ़ते हैं ना साध संगत, तो ख्याल आता है भी दुनिया दे विच धर्म बहुत ने, फिरके भी बड़े ने, मत भी बड़े है। धर्म के अनुसार लोगों ने कपड़े भी वंड ले, धर्म स्थान भी वंड ले, तो इत्थों तक कि इस संसार के लोगों ने परमात्मा नूं रब नूं भी वंड लिया, रब भी वंडिया गया।
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਖਾਸ ਰੰਗ, ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਪਏ, ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਵਧੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਛੂਆ ਛਾਤ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਟੱਬਰ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਧਰਮ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਧਰਮ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਐਸਾ ਵੀ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧਰਮ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਚਨ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੇਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਕਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਬਿਜਿਨਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਇਹ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸ਼ਬ ਭਰ ਮੇਂ ਸ਼ਮਾ ਕੀ ਹਰਾਰਤ ਵਾਲੋਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਝਾਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਥਾ ਬਰਸੋਂ ਮੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਨਾ ਸਕਾ। ਵੀ ਮਨ ਇੰਨਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਮਨ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਿਆ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ। ਬੱਚੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ,
कोई बाकी नहीं। गणित है, जेकर इंग्लिश है, जेकर हिंदी है, सारे पेपर असी मुका चुके हैं, हुण कोई पेपर बाकी नहीं। पर अध्यापक कहता जी एक पेपर है जिहदा नाम है धर्म का पेपर, धर्म का एग्जाम तुहाडा बाकी है, तो कल नूं मैं ये एग्जाम लैना। बच्चे फिकरां दे विच पै गए, साध संगत जी भी असी तो पढ़िया ही कुछ नहीं, धर्म का पेपर है तो असी तो पढ़ाई कोई कीती नहीं। हुण सवेरे पेपर है तो बच्चे जाके सोचां दे विच पए, पुस्तकां लभदे ने, साध संगत वो अपनियां झोलियां नूं बस्तियां नूं खोज खोज के वेखदे आ भी धर्म की गल कीती कित्थे गई है। माफ़ करियो, धर्म पढ़ाउण दा विशा नहीं है साध संगत कि असी पढ़ा के किसी ते थोप दईए। धर्म जिहड़ा साध संगत एक कमाउण दा विशा है। असी उस नूं वेख के कमा लईए भी धर्म गल की कह रहा है, धर्म की ये बात किसी ने कीती की है। औरंगजेब भी वैसे धर्मी है, औरंगजेब भी धर्म की गल कर रहा है, पर उस दे धर्म दे विच पाप है, जबरदस्ती है, धरोह है। पर गुरु नानक महाराज पातशाह जी भी धर्म की गल कर रहे, पर उस धर्म दे विच साध संगत मरदाना जी वर्गियां नूं गल नाल लाया जा रहा। उत्थे साध संगत संगत ते पंगत की मर्यादा आरंभ की जा रही है। इत्थे धर्म की गल की जाती है तो पावन श्री दरबार साहब श्री हरमंदर साहब जी के 4 दरवाजे रखे जाते हैं। लोग धर्म की गल सुन नहीं सकते क्योंकि धर्म ने वितकरे पाए, कंडीशनां लागू कर दित्तियां भी इस्त्री इत्थे आ नहीं सकती, नीवीं जात वाला इत्थे बह के रब का नाम लै नहीं सकता। पर सतगुरु साहब महाराज जी ने धर्म के दरवाजे सारिਆਂ वास्ते खोल दिते। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपादना की, ते जिन्होंने मंदिर विचों धक्के मारे गए, जिन्होंने साध संगत नीवीं जात वाला आख्या गया, तो भावें कि वो धर्म की ही गल कर रहे, रब दे घर दीयां बातां कर रहे, उही रब्बी बाणी संसार नूं पढ़ के सुणाउंदे पे। पर साध संगत उन्होंने धर्म के अनुसार प्रवानगी नहीं। पर गुरु अर्जन देव साहब महाराज पातशाह जी ने ऐसा प्रवान किया, ऐसा गलवकड़ी नाल लाया कि सदा वास्ते श्री हरमंदर साहब विखे सुभाएमान कर दिता। दुनिया मंदिरां चों धक्के मारदी साध संगत, पर उस हरमंदर दे विच आके अज हर कोई सीस झुका के नमस्कारां पिया करदा। यह है धर्म का फलसफा। ये बुनियादां सन जिहड़ियां गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी ने रखियां। हुण बच्चे जिहड़े सन ना साध संगत तैयारी कर रहे भी धर्म का पेपर है, धर्म का एग्जाम लिया जाना है, तो असीं हुण लिखांगे कि सुणावांगे कि असीं तां पढ़िया ही नहीं साल भर, सानू तो पढ़ाया ही नहीं गया ये विशा। साध संगत सवेरे सारे बच्चे तैयार होके ते स्कूल पहुँच रहे ने, ते धर्म का पेपर देखो टीचर ने कितना सोहना पाया। धर्म का पेपर की सी कि स्कूल के मुख दरवाजे के उपर टीचर ने अध्यापक ने कंडे खिलार दिते, राह दे विच कंडे खिलार दिते। ये सी एग्जाम, ख्याल करियो ये पेपर सी जिहड़ा उस अध्यापक के जेहन विच है, तो वेखना चाहुंदा है भी जिहड़े बच्चे हन स्कूल आउंदे ने उन्हां दे रस्ते दे विच कंडे खिलारे होए, हुण ये बच्चे कंडे पासे करदे हन कि नहीं करदे। ये प्रीख्या सी। सारे बच्चे आउंदे वारी वारी, कोई सज्जा पासा वट के लंघ जाता है, कोई खब्बेों लंघ जाता है, कोई साध संगत बोच के पैर रखदा कंडियां दे विचों ते क्लास विच पहुंच जाता भी देर हो रही है, पेपर देना, एग्जाम देना जाके। सारे बच्चे क्लास दे विच पहुंच गए, दरवाजे दे खिलरे हुए कंडे किसी ने हटाउण दी कोशिश नहीं की। अध्यापक टीचर आया, क्लास विच सारिਆਂ ने अटेंडेंस लवाई ते नाल दी नाल फैसला रिजल्ट भी सुना दिता भी सारे दे सारे फेल। हैरान हो गए सारे भी की गल भी असी तो प्रीख्या नहीं दी, पुछया ही नहीं, सवाल जवाब तो होया ही नहीं कोई, ते सानू फेल भी कर दिता। बच्चियां ने फिर दलेरी नाल हिम्मत नाल पुछया, सर जी असल दे विच ये दसो प्रीख्या की सी? ते टीचर ने समझाउणा कीता यही धर्म की प्रीख्या सी भी रस्ते दे विच कंडे खिलरे हुए ने,
ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੰਡੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਜਿਓਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੱਬਿਓਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਂ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਜੀ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਸਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਬਾਣਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਜਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਾਈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਸਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਜ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਵਿਚਾਰਿਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਪੁਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਥਾਈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਥਾਈਂ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਮੌਤ ਆਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਧਰਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਚਾ ਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੌੜੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੇ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਅਮਰਨਾਥ ਗਏ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ, ਬੜੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾਏ, ਬੜੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੌੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਧਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ।
मटन का इलाका कश्मीर की धरती, ते इसे पंडित ब्रह्मदास का पड़पोतरा है पंडित कृपा राम, ते ये भी गुरु घर का प्रचारक सी कश्मीर के इलाके दे विच। ये कहन लगे, कहंदे जी जे कोई बोहड़ी करन वाला नहीं तो एक है, एक दर ऐसा है। मैं पहला भी बेनती की सी, देखो बच्चा भरोसे नाल जदों बांह फड़दा है ना अपने बापू दी, अपने पिता दी, ते सानू इन्ना को विश्वास होवे सामने भावें लखां दी भीड़ आ जाए, बच्चा पहला तुरिया जांदा होवेगा, ख्याल करियो बापू दी उंगल फड़ के तुरिया जांदा होवेगा। जदों सामने भीड़ आउंदी है तो बच्चे ने उंगल छड्ड दित्ती, जदों उंगल छड्डी ते साध संगत उस वक्त पिता ने अपने बच्चे दे वल सिर घुमा के वेख्या भी पुत्रा भी सामने दा भीड़ आउंदी पई, बड़ा वड्डा लोकां दा इकट्ठ है ते तू मेरी उंगल छड्ड दित्ती है, गवाच जाएगा। पर बच्चे ने कमाल कीती, बच्चे ने उंगल छड्डी, अपने पिता दी उंगल छड्डण तो बाद अपना हथ अपने बापू दे हथ दे विच फड़ा दिता, अपनी बांह अपने पिता दे हथ दे विच फड़ा दित्ती है। कहन लगा पिता जी सामने भावें लखां दी भीड़ है, मैनूं पता है जेकर मैं तुहाडी उंगल पकड़ी हुई तो मैनूं पता भी मेरे अंदर इन्नी ताकत नहीं, मैं कमज़ोर हाँ, ते धक्का वजेगा भीड़ आवेगी तो मैं उंगल छड्ड सकदा, पर मैनूं भरोसा है चाहे लखां दी भीड़ आ जाए, धक्के वजन, ठिड्डे ठोडे वजन, औखियां घड़ियां विपतावां आ जाण, साध संगत जदों बापू ने बांह फड़ ली होवे ते फिर बापू कदे भी उंगल जां बांह कदी छड्डदा नहीं है। ये बच्चे दी मन की मनसा सी। ते साध संगत किते इहो जी बांह सतगुरु महाराज पातशाह जी नूं असीं भी फड़ा दी। कश्मीरी पंडितां ने तां भरोसा कर लिया। पंडित कृपा राम कहंदा एक दर है, आओ उस दर ते मैं लैके जावां। वो है धन श्री गुरु नानक महाराज जी का दर। वो हन सच्चे सतगुरु गुरु नानक महाराज पातशाह जी की 9वीं जोत गुरु तेग बहादुर साहब। ते भट्ट चांद जी भी लिखते, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है, मन लोचै बुराइयां गुर शब्दी ए मन होड़ी है। तेग बहादुर बोलिया धर पई है, धर्म ना छोड़िए, बाहें जिन्हां दी पकड़ी है, सिर दीजै बाहें ना छोड़िए। इत्थे सिर दिता जा सकता है साध संगत, पर बांह नहीं छड्डी जा सकती। गुरु कृपा करे कि बांह फड़ाउणी आ जाए सानू सतगुर दे अगे। सगल द्वार कहो छाड़ के गहियो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। मेरे मालिक वाहिगुरु जी आ बांह फड़े हुए दी इज्जत, इहदी शर्म, इहदी लाज तेरे हत्थां दे विच है, क्योंकि मैनू तां दूसरा किसी दा सहारा नज़र नहीं आउंदा। ते सतगुरु महाराज जी दे चरनां विच पुकार कीती। 2 अस्थान ने आनंदपुर साहिब जी की धरती ते साध संगत बड़े चेता रखण वाले। एक है वो स्थान जिथे जाके कश्मीरी पंडितां ने पुकार कीती है, ते दूजा वो स्थान जिथे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी के सीस का संस्कार हुंदा। ये दोवें स्थान सानू चेता कराउंदे कि साध संगत धर्म कमाउणा होवे ते धर्म इस प्रकार कमाया जाता है कि कोई मजलूम, कोई इस दुनिया का दीन गरीब सतगुरु के दर ते जेकर आके बेनती करता है कि साडी बांह फड़ लो, तो उस दी बांह फड़े हुए दी लाज इस तरीके नाल रखी जाती है। जदों प्रकाश होया ना गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी पावन श्री हरमंदर साहब विखे आसा की वार बाणी का कीर्तन श्रवण कर रहे सन। सुनिया मिलिया सेवक ने श्रवणा दे विच आके क्या सतगुरु जी वधाई होवे। आप जी दे गृह विखे 5वें साहिबजादे 5वें सपुत्र वड्डे हन बाबा अटल राय जी, उन्हां तो छोटे बाबा गुरदित्ता जी, फिर हन बाबा अणी राय जी, फिर हन चौथे बाबा सूरजमल जी, ते 5वें हन जिन्हां दा नाम बचपन विच रखिया त्यागमल जी। 5वें साहिबजादे ने प्रकाश धारिया है, जन्म लिया है। सतगुरु महाराज जी
पूर्ण समाप्ति हुंदी है, भोग पाए जाते आसा की वार दे, ते फिर अपने महलों के वल गुरु के महल वल चाले पाउंदे। नाल बाबा बुढ़ा साहब, बाबा बिधि चंद जी, कुछ प्रमुख गुरसिख नालों नाल तुरदे गए। ते जद धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज मीरी पीरी दे मालिक मेरे पातशाह जी ने पहली तकनी पहली वार दर्शन किए, नव जन्मे सपुत्र बालक श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी दे, ते साध संगत सत्कार सहित सतगुरु जी ने शीश झुका के नमस्कार की। ते नमस्कार जो की ते बाबा बिधि चंद जी ने सवाल किया, पातशाह ये क्यों? पहले भी 4 सपुत्र तुहाडे गृह विखे, पर पातशाह जी इहो जी करनी नहीं कि आप जी ने नमस्कार की होवे, शीश झुकाया होवे। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पातशाह जी दे उस वक्त 3 बचन सन साध संगत, धर्म रखियक, दीना बंधु, संकट हरै। पातशाह जी कहन लगे धर्म रखियक होणगे, इन्हां ने संसार दे विच धर्म रखियक बनना है। ये दीना बंधु होणगे, मजलूम गरीब दी बौड़ी करन वाले ते संकटां नूं विपतावां नूं हर लैण वाले होणगे। इन्हां दी उस करनी नूं, इन्हां दे आउण वाले कारनामे नूं मैं शीश झुका के नमस्कार कीती। पातशाह जी आउण वाला भविख पहलां ही दस रहे, ते सचमुच ही जो उन्होंने संसार दे विच करना, ते 4 साल की आयु दे विच मेरे पातशाह जी ने प्रगट भी कर विखाया। एक बच्चा ठंड दे विच तड़फदा है, तन दे उपर कोई कपड़ा नहीं। उस वक्त माता नानकी जी ने बड़ा सुंदर बड़ा सोहना लिबास तन दे उपर शरीर उपर पा के सजा के गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी नूं बाबा गुरदित्ता जी की बरात विच शामिल होने लई भेजिया। बच्चे इकट्ठे होए ने, अज दी खुशियां मनाइयां जा रही। उन्हां बच्चों दे विच एक बालक ऐसा, वो बालक खुश तो हुंदा है, अगे वध के भी आउंदा है, पर तन दे उपर कपड़ा ना होने कारण शर्मिंदा हो के पिछां जाके लुक भी जाता है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह उस बालक नूं तकदे ने, बांह फड़दे ने, एक पासे लिजांदे ने, ते अपना कीमती लिबास, अपने कीमती वस्त्र उतार के ते ओदा नंगेज ढक के ते आप घर इस तरह ही वापस आ जाते। माता जी गिला करते हुए कहन लगे, सपुत्र जी आ कीमती वस्त्र पाए सन किथे? अज बड़ा बखूबी तुहानूं तैयार करके भेजिया सी, किस नूं दे आए हो ये लिबास? ते पातशाह जी का जवाब, माता जी उस नूं दे के आया जिस दे कोल एक कपड़े नहीं, तन ढकण नूं की रोटी खाण वास्ते भी उहदे कोल पैसा नहीं। माता जी ने गिला करदे आख्या, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सतगुरु जी वेखो, आप जी दे साहबजादे वल अज ही नवे वस्त्र पवाए सन ते किसे बच्चे नूं दे आए ने, वो लिबास उतार के उस नूं दे दिता है। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज मुस्कुरा के आखन लगे, माता नानकी जी अज सिर्फ लिबास दे के, अपने वस्त्र दे के ते किसे दी इज्जत, किसे दी पत ढकी है, समा आवेगा अपने सवास दे देणगे ते किसे दे धर्म दे रखियक बन के उन्हां दा धर्म, उन्हां दी इज्जत बचा लैणगे। अज लिबास दिता है ते आउंदे समय विच अपने सवास तक दे आउणगे। प्रगट कर दिता वो आउण वाला समा। सतगुरु महाराज पातशाह जी कृपा करन, साध संगत समा सीमित है। सतगुरु महाराज पातशाह जी दे हजूरी विच बहुत बुलारे अज पहुंचे हुए ने। संध्या दे वक्त रात्रि दे दीवान भी सजने ते दास ने फिर आप संगत नाल इतिहास की सांझ जरूर पाउणी। सो इन्नियां कि विचारां आप संगत ने प्रवान करनियां। वैसे लगभग 4 सालां तो दास नूं इत्थों दे प्रबंधकां वालों, संगतां वालों, मातावां भैणां बहुत सत्कारयोग बैठियां हन, विराजियां हन, बड़ा प्यार मिलदा आउंदा है। ते पहली बार 2016 दे विच इस स्थान ते 2 दिन कथा विचार करन दा सुभाग मिलिया सी। ते गुरु पातशाह जी की कृपा कि उस दिन तो बाद 4-5 साल के तकरीबन हो चुके ने। हर साल संगत के दर्शन करन दा, सतगुरु महाराज जी की हजूरी सेवा निभाउण दा ये अवसर प्राप्त हुंदा है। आप सारियां संगतां दा, प्रबंधकां दा तह दिलों धन्नवाद।
आप जी नूं साध संगत इस बात दीयां भी वधाइयां होण जिथे 400 साला प्रकाश गुरपुरब मना रहे हाँ, उत्थे इन्हां पावन स्थानां ते जिथे भटवईयां दे अनुसार गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी दे इस धरती ते चरण पए। सामने जेल है, ये जेल भटवईयां दे अनुसार जो गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं रोपड़ तो गिरफ्तार किया ना, ते इस जेल दे विच सतगुरु जी नूं बंदी बना के रखिया सी। ते साध संगत इतिहास के स्रोत अजे बहुत वाधां घाटां दे अनुसार सामने लियाउण वाले बड़े पक्ष ने। गुरु कृपा करे ये इतिहास उजागर हो के संसार के सामने प्रगट होवे, असल सच्चाई दुनिया के सामने आवे। ते आप वडभागे इस गल्लों भी हो इन्हां पावन स्थानां दी यादगार सतगुरु जी का 400 साला प्रकाश पुरब मनाउंदिआं बिल्कुल गुरुद्वारा साहब के नेड़े चौंक दे विच खंडा साहब भी सुशोभित कीता, जिथे बाबा नरिंदरजीत सिंह जी सचखंड श्री हजूर साहब वालियां ने नींह पत्थर रखिया। इलाके के MLA वालों संगतां वालों पूर्ण सहायता के नाल समुची प्रबंधक कमेटी ते कालों परिवार वालों समुचियां ये सेवावां ते साध संगत गुरु महाराज पातशाह जी के बख्शिश के सदका ये कारज भी नेपरे चढ़े हैं। आप सारे वधाई के पात्र हो। सतगुरु महाराज पातशाह जी कृपा करन, भुलां दी खिमा बख्शणी। इस तरह गुरु चरनां विच जुड़े रहिए, गुरु दियां बख्शिशां दा आनंद माणदे रहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतकर्ता श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आप लिए लड़ लाए दर दुर्वेश से, तिन तन जनेंदी माओ आए सफल से। परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पिछाता सच चुम्मा पैर मुँह, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शिंदगी। शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शिंदगी। शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शिंदगी। शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, श्लोक हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह
ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ 488। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੌਜ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ, ਸਰੋਵਰ ਇੱਕ, ਸੰਗਤ ਇੱਕ, ਪੰਗਤ ਇੱਕ, ਜ਼ਾਤ ਨ ਪਾਤ, ਊਚ ਨ ਨੀਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਏ ਹੁਜ਼ੂਰ ਬਾਲਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨੋ ਜ਼ਮਾਂ, साहिब मकीनो मकां, साहिब जिस्म जां, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे हादी, मेरे रहबर, दसां पातशाहां दी जोत स्वरूप, हाजिरा हजूर, ज़ाहिरा ज़हूर, नूरुन अला नूर, तानु तानु सत सत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पाक वाहिगुरु। संगत जीओ, आप जी भी हामा भरो। मैं सोहने सोहने लफ्ज़ां दियां डालियां साहिब दी पवित्र बारगाह विच पेश करन लग्या हाँ। ते तुसी वेखो, इको एक गल सत होनी है। जे अगर तुहाडे मन नूं लगदी है कि हाँ सच्ची है, ते वाहिगुरु नाम जप के कहो नानक, एह जगत में किन जप्यो गुरमंत। पाक वाहिगुरु, पावन वाहिगुरु, पवित्र सुची पाकीज़ा वाहिगुरु, कृपालु वाहिगुरु, दयालु वाहिगुरु, अज़मत वाली वाहिगुरु, रहमत वाली वाहिगुरु, बरकत वाली वाहिगुरु, उच्ची उच्ची वाहिगुरु, सुच्ची सुच्ची वाहिगुरु, प्यारी प्यारी वाहिगुरु, निग्गी निग्गी वाहिगुरु, जग तो न्यारी वाहिगुरु, बारगाह आलिया च वाहिगुरु। खाकसार गुलाम हैदर कादरी आप दी हाज़री नूं अपनी सादतमंदी, तिलक कुशाई नूं खुशनसीबी समझदा है। गुरसिख वीरो गुलाम हैदर कादरी दा सलाम अर्ज है, कबूल फरमान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्ने साडे गुरु रूप सिख संगत इत्थे हाजिर है, बाकी जिहड़े ने वो टेलीविज़न के राही सुन रहे ने, उन्हां सारियां नूं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे प्रकाश पर्व दियां कोटन कोट मुबारकां पेश करदा हाँ। प्रवान करो जी। एक बारी गज के आखो सतनाम वाहिगुरु। अज जो मंगोगे सो ही मिल जाना है। ए दर ओ दर है जिस दर तो ना कोई खाली गया है और ना ही कोई खाली जाना है। ओ लोग बहुत टोटे ते खसारे च चले गए ने जिन्हां ने साहिब नूं जानिया नहीं। गुरु वल मुख ते सारे ही सुख और गुरु वल पिठ ते सारे ही दुख। नीता नाल मुरादा हुंदियां ने। एक उर्दू का शेर आप जी की समातां के हवाले करन लग्या हाँ। साहिब की गली का पूछा पता तो रहबर पे ये पड़ा असर। जो राह दिखाने आए थे वो वापस जाना भूल गए। जब से मिला ये सोना दर हम दर दर जाना भूल गए। इस दर पे जब झुकाया सर ते सर को उठाना भूल गए।
कितनी मस्ती दे नाल दर्शन करने चाहिए है। हज़रत मौलाना रूम साहब इस्लाम दे काजी, यानी अज दे दौर ते आपां मान लीए कि सुप्रीम कोर्ट दा जज जिन्नी पावर रखता है उन्नी पावर सी, और टाइम भी बहुता हो गया है, 800-900 साल का समय आ। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज परतख गुरु ने, परतख गुरु, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। उन्होंने एक फारसी का शेर तो वह मैं अर्थ करके थोड़िया समातां के हवाले, जे अगर इन्नी क रूहानीयत भी हैगी ना थोड़े च तुहानूं आनंद आना, जे अगर रूहानीयत ही नहीं है तो तुहानूं बकवास लगनी है, मेरे च कोई फर्क नहीं पैंदा। गहे खंदम गहे गिरियम गहे उफ्तम गहे खाइजम, सखुन मस्तानमी गोयत, सखुन मस्तानमी गोयत के गिरदे यार मी रकसम। जिस वेले मैनू मेरे मुर्शिद दे दीदारे हो जाते तो मैं कदे झुक जाता, कदे थले गिर जाता, कदे उठ जाता, कदे मेरे पैर ऐदा झुमना शुरू कर देंदे। अगे मैं की करदा, सखुन, सखुन कहते ना बोलना, मस्ताना मी गोयद, मैं जिस वेले बोलदा तो ऐदा बोलदा जिमें मस्त बोलते ने कि गिरदे यार मी रकसम, मैं अपने मुर्शिद दा तवाफ करना शुरू कर दिंदा, परिक्रमा करनी शुरू कर दिंदा। मैं कहना कि इस चीज़ नूं जे अगर तुसी पैगाम नूं पैगाम समझोगे तो तुहानूं समझ आनी है कि जब इत्थे आया करो तो गिर जाया करो, और जब गिर जाया करो तो किदां गिरया करो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का एक तुक आप जी की समातां के हवाले तो वह अर्थ, तुम शरनागत राजा राम चंद कहे रविदास चमारा चमारा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं पाउना रूहानियत दियां खेड़ा हन, इसनूं इश्क बिना हासिल नहीं किया जा सकता। की फरमा रहे ने, और फरमा रहे ने कि तुम शरनागत, शरण ओठ, गत गति भज के आना, यानी जिस वेले इंसान नूं सारी दुनिया मार दिया हाहाकार मची हुंदी है उस वेले वो शरनागति हुंदा है किदा, राजा राम चंद। ते राजा दा राजा कौन है, बादशाह दा बादशाह कौन है, वकीलों दा वकील कौन है, शहनशाह दा शहनशाह कौन है, ओ अकाल पुरख परमात्मा परतख गुरु निरंकार और आकार का खेल है, इन्हें समझना होगा। यानी शरनागत, शरण दे विच ते क्या राजा राम, राम का मतलब है रमन वाला परमात्मा, और चंद का मतलब है जिहड़ा प्रकाश बन के अपने अंदर समाया होया है, कहे रविदास चमारा। तो अजकल इस अर्थ नूं किदां समझिया जाता है कि वह चमार सन, इस करके आप नूं कह रहे हैं हर इंसान चमदा बनया होया है, हर मनुख चमार है। यानी आप दे आप नूं एक बिल्कुल नीमा समझ के उस तो बाद शरनागति होना चाहिए है। इंसान नूं सब तो बद मारते ने ओदे विकार जद ओदे अंदर आने शुरू हो जाते हैं ना, तो ओदे विच दूई फर्क दूरी यह चीज़ां पैदा हो जांदियां ने, और जिस वेले वो आप दे आप नूं मारना शुरू करता है तो परमेश्वर के नेड़े हो जाता है। हुण आपां साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाने लई इकट्ठे हुए हैं। 4-5 चीज़ां तुहाडीआं समातां दे हवाले करांगा, और बद बुद्धिमान लोगों की गल समझ आनी है, रागियां दे आनी है, ढाडियां दे आनी है, ज्ञानियां दे आनी है, तो और प्रोफैसरां दे आनी है, और बच्चियां भी आजकल माशाअल्लाह बहुत पढ़िया हुई ने। इन्हां माशाअल्लाह कहा तो कितने नाराज तो नहीं हो गए। माशाअल्लाह का मतलब है बहुत खूब, बहुत सोहना, बहुत चंगा, क्योंकि तुसी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के उत्ते 10 पातशाहां के उत्ते अपना कब्जा जमाया होया है, और हुण साहिब की अदालत के विच गुलाम हैदर कादरी अपना केस लेके आया होया है। कौन जितदा है तो कौन हारदा है तो साहिब की मर्जी है, साहिब की रजा है, पर कब्जा छुड़ा के रहांगे। साडा हक जिहड़ा हैगा वो है।
उस दलील वाल मैं जाना नहीं चाहता। तो मैं जड़ियाँ नवीं गल्लां आप जी की समातां दे हवाले करन लग्या हाँ, तुसीं कहोगे किहड़ी किताब च, तो ये भी तरक सुन लो। जिस वेले रब दे प्यारे बोलते हैं तो किताब बनती है, जब किताब चट लेंदे ने उस वेले विद्वान बनते हैं। कितना फर्क है। आ दलील सुन लो, दम टुट जाना है तुहाडा दलील सुन के। दसो हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने केड़ी यूनीवर्सिटी दे विच PhD की? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह ने केड़ी यूनीवर्सिटी दे विच PhD की है? मैं जे अगर गिनावां तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच जिहड़े इलाही पुरख दर्ज ने उन्होंने केड़ी यूनीवर्सिटी दे विच PhD की है? अज उन्हां दी बाणी दे उत्ते, अज उन्हां दे लेख दे उत्ते PhDयां दियां डिग्रियां मिल रही ने। अरे एक उर्दू दा शेर तुहाडी समातां दे हवाले घर जाके भी जे अगर सोचो तो तुहानू नींद नहीं आनी। काबलियत की सनत तेरी दस्तार नहीं, कुछ दिनों बैठिए किसी इंसान के करीब। रूहानियत दियां खेडां, रूहानियत दियां गल्लां किताबों की मोहताज नहीं हुंदियां, बल्कि जद रब दे प्यारे अखां बंद करके आप गुर पुछ लिख विचार आप ही साहिब नूं परतख करके पुछदे ने, ज्ञान मिलता है, सूरत खुल जाती है, इल्म हिकमत दे चश्मे उन्हां दे अंदर समा जाते हैं। उस वेले उन्हां नूं पता लगता है कि किहदी अहमियत की है तो किहदी खूबी की है। तो हुण किहड़ियां गल्लां? सब तो पहली गल और पहला फुरना, दसां पातशाहान जिहड़े ने ये गुरवे अवतारी ने। की ने? गुरवे अवतारी। अवतार तारन वास्ते आने वाले ओ विशेष ओ रब दा रूप इस धरती दे उत्ते आए। कुरान शरीफ दे विच एक आयत आई है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिल्लिसानी कौमिन लियुबय्यिन लहुम। हुण अवतार नूं अरबी दे विच रसूल कहा जाएगा। रसूल, रसूल दा मतलब है पहला कहंदे सी मरासला, भेजिया, यानी लैटर चिट्ठी, पैगंबर आया, पैगाम लेके आया। तो हुण जिहड़े अवतरित होए हैं, रब ने सारी रूए जमीन दे उत्ते इस तरह दे अपने प्यारियां नूं भेजिया और अहले जबान यानी वो सीधे साधे लोगों को उन्होंने जबान विच समझाते सी। अज असी इस गल का दावा बहुता करते, मैं ज्ञानी वो भरा मेरे रहन दे, और कुछ भी नहीं। जो समझ आ गई एक गल तेरे नाम अल्लाह बड़ा कीमती है तो फिर तू ज्ञानी है, नहीं तो फिर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी ने पहले ही लित्तर पोला कर दिता है, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना है जी। किरपा का पात्र बन के रहना चाहिए। तो हुण आपां गल करन लगे हैं, और भरा हुण मेरी बारी है, मैं तुहाडी सुननी नहीं, तुसीं मेरी सुनोगे। इस करके मेरे वाल थोड़ी सुरत रखो। नवीं गल सिर्फ एक मिनट दे विच तुहाडीआं समातां दे हवाले करन लग्या, और वो मसला वो फुरना साडे नौजवानां दे बच्चियां दे बड्डियां दे बूढ़ियां दे मन च आउंदा है। हुण कई सारे कहणगे कि कादरी साहब जी दी दाढ़ी जिहड़ी हैगी आ वो काली है तो साड़ी चिट्टी है, असीं वड्ड उमर दे हां। फिर क्या है कि बुजुर्गी बाइल मस्त ना व विसाल, बुजुर्गी जिहड़ी है ज्ञान दे नाल हुंदी है, उमरां दे नाल नहीं हुंदी। ऐ दरवेशां दा लिखिया होया है। हुण आपां अगला वचन सुनिए। अगला वचन की है कि अवतार जिहड़ा है वो अपनी मर्जी मुताबिक ओदा समय हुंदा है, अपनी मर्जी मुताबिक ओदी माँ हुंदी है, अपनी मर्जी मुताबिक ओदा प्यो हुंदा है, अपनी मर्जी मुताबिक समा हुंदा है, अपनी मर्जी मुताबिक ओदा स्थान हुंदा है। ये फर्क है साडा और गुरु साहिबाना दा। कितना बड़ा फर्क है भाई, हैगा कि नहीं? आ देखो मैनू ये बुजुर्ग बहुत चंगे लग रहे, सुन भी रहे हैं। आ कहने बोलना नहीं तो गर्दन हिला के जरूर दस देना कि गल मेरे समझ आई है। तो तुसी भी अज थोड़ा थोड़ा जा ऐदा इंदा करके हिला लो। फायदा की होना है कि करोना नहीं होना। कहा गया है कि जब गर्दन रुकनी शुरू हो जाए उस वेले हिलानी शुरू कर दो, करोने का इलाज हो जाना है। तो मैं फिर इलाज वाल भी चलता हाँ ना थोड़ा जा। तो हुण आपां किद्दां आपां पैदा होए, किवें पैदा होए? हो गए बस अल्लाह की मर्जी जिस घर च पैदा किया, अल्लाह की मर्जी जिस इलाके च पैदा किया, अल्लाह की मर्जी जिहड़े माँ पे बनाए आए तो अपनी मर्जी मुताबिक नहीं आए, और जब गए तो आप दी मर्जी मुताबिक नहीं गए। उर्दू के शायर ने कहा है, लाई हयात आई कज़ा लै चली चले।
अपनी खुशी न आए थे और ना अपनी खुशी चले। अपनी खुशी तो नहीं आए थे ना। तो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की जिहड़ी आमद है वो उन्होंने मर्जी है, प्यो उन्होंने चुनिया, माँ उन्होंने चुनी, समा उन्होंने चुनिया, गुरता गद्दी का समा भी उन्होंने चुनिया। बिल्कुल वखरी तो नवीं गल्लां दस के जावांगा, हान पुरानियां, पर जब तक रूहानियत हासिल नहीं करोगे ये गल्लां तुहाडे समझ नहीं आउंदियां। इस तो भी कीमती अगली गल दसन लग्या। गुरु बेमिसाल और गुरु साहब जी दे जिहड़े फादर ने वो बेमिसाल, जिहड़ी माँ है वो बेमिसाल है, जिहड़ा पुत्र है वो बेमिसाल है, जिहड़ा पोतरा है वो बेमिसाल है, जिहड़ी शरीके हयात है पत्नी है वो बेमिसाल है। यानी जब इन्हां दी कोई मिसाल ही नहीं तो मिसाल किवें दे सकदा। मैं तो तुहानूं दो चार खूबियां दस के जावांगा। पहले आपां तारीख नूं लै लैंदे आ ना। लोग कहणगे भी तारीख तुरीख यार छड्डो परां इन्हां गल्लां नूं। जिहड़ियां तारीखां तुसीं लिखदे हो वो तारीखां ठीक है पर ज़रूरी नहीं। मैं तुहानूं दस दिंदा, चलो खैर 1621 शुक्रवार का दिन हुण अज जिस दिन आपां बैठे हैं इस महीने नूं लैके ते जिस वेले साहिब की आमद हुई सच्चे पातशाह 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं जाके ये सुनेहा लाया गया कि आप जी के घरे सपुत्र ने जन्म लिता है ते माता नानकी जी, क्योंकि साहिब दियाँ 3 महल ने। सब तो बड़े माता दामोदरी जी, उस तो छोटे ने माता मरवई जी, ते सब तो छोटे ने माता नानकी जी। अज गुरु के महल गवाह है, उत्थे आप जी की आमद हो गई है। जिस वेले आमद हो गई है कीर्तन चल रहा है, कीर्तन समाप्त होया, साहिब नूं सद्दा दिता गया। साहिब जब आए तो आके उन्होंने आप दे इस फरजंद दिलमंद नूं नमस्कार कीती, वंदना कीती। किने कीती? प्यो ने कीती। सवाल खड़ा हो गया क्यों कीती, कारण की है? बाबा बिधि चंद साहब नाल ने कहते सच्चे पातशाह हजे तो न्याणा है, तुसी क्यों वंदना कीती है, क्यों नमस्कार किया है? वो कहन लगे जो मैं जानता हाँ वो तुसी नहीं जानते, जो मैं वेखदा हाँ वो तुसी नहीं वेखदे। और सिखो जोतशियां दे कोल जाने हो, देखो तुसी किन्ना प्रतख गुरु है। आने वाले दौर नूं वेख लिया, जिहड़ा आया है ओदी शान ओदी कहते सदकता। हाँ ठीक है, सदकता और सत वचन एक कोई गल है। तो जनाब आला होया कि काजी जीवन दे नाल जिस वेले साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वार्ता शुरू हुई है, डिबेट शुरू हुई है, उस वेले काजी जीवन दे जद गल समझ आई तो ओहो गहे खंदम चुक गया, गहे गिरियम पैरां च डिग गया, गहे उफ्तम फिर उठिया, गहे खैजम फिर झोली पसार दी, मैनू नाम दी बख्शिश करो। सच्चे पातशाह ने क्या सत करतार चित आवे। हुण जिहड़ा काबे दा इमाम सी वो सत करतार सत करतार सत करतार सत करतार, ओदी नौकरी गई फिर भी मस्त है, ओदा परिवार नाराज होया फिर भी मस्त है, ओदी कौम नाराज हुई फिर भी मस्त है। नाम दी खुमारी दा एक कतरा मिल गया है और वजूद नू आला वजूद बना दिता है। जिहड़ा फनाफिल वजूद सी हुण ओ बका बिल वजूद बन गया है। क्या अज आपां बैठ के काजी रुकनुद्दीन साहब नू याद करदे हां, उन्हां नू बेदर्दी दे नाल शहीद किया गया। और ओ शहीद कीदा है बई? दसो ना यार, गुरु नानक साहब दा। गुरु नानक साहब दा शहीद है कि नहीं है? कौन? काजी रुकनुद्दीन। हुण उत्थे डिबेटां जड़ियां हुईयां वो 365 दलीलां तवारीख गुरु खालसा दे विच ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने लिखियां ने। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी डेरा बाबा गांधा उत्थे बरनाले च उन्हां दा स्वरूप भी लग्या होया है। तवारीख गुरु खालसा उहदियां जिल्दां हन। पहले वो उर्दू च लिखी गई सी कि उस जमाने दे विच उर्दू फारसी सी। हुण मैं तुहानूं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की अहमियत दसन जा रहा।
मेरी यार विडंबना यह है कि मैनू ਸਰੋਤੇ नहीं मिलते क्योंकि उन्होंने उस गल का पता ही नहीं लगता जी मैं दसन लग्या। मैं तुहानू अपने मौजू तो हट के नहीं गल कर रहा, मेरा मौजू और मेरा विषा उही है। जिस वेले गलबात हुई तो गलबात की हुई है, गलबात ये हुई है क्या कि दसो पुनर्जन्म हुंदा है कि नहीं। तो इस्लाम पुनर्जन्म नू नहीं मानता तो सिक्खी पुनर्जन्म नू मानती है। गल सही है कि नहीं। उस वेले सच्चे पातशाह ने जवाब दे विच करनी नामा उच्चारण किया। नानक आखे रुकनुद्दीन सुनहो सच्चा जवाब, पढ़े सुनै जो प्रीत कर छूटे सब अजाब। दसवां जामा पहन कर बैठूं पुरकरतार, औरंगजेब बादशाह से युद्ध करूं बहुबार। यानी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने 10वें जामे च आके जब इस जगत का कल्याण करना सी, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। यानी प्यो कौन चुनिया है? साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज। माँ कौन चुनी है? माता गुजरी जी। आ देखो कितना बड़ा फलसफा है। दोबारा आमद कीदी हो रही है सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी। हुण देखो इत्थे आ जाओ। तीन तन जनन दी माओ आए सफल से। मां आप चुनते ने, प्यो आप चुनते ने, थां आप चुनते ने। आप आना सच्चे पातशाह ने ते पहले प्यो ने आना सी ना। तो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दी शान वाला सिफात कितनी बुलंद है। और आप देखो कि 6वीं पातशाही ने जिहड़ा पहला नाम रखा वो नाम रखा त्यागमल। की रखा? त्यागमल। हुण इन्हां दे जिहड़े प्राण है बाबा गुरदत्ता साहब, बाबा सूरजमल साहब, बाबा अटल राय जी साहब, बाबा अनिल राय जी साहब और एक भैन भी है बीबी बीरो जी। हुण पता है की कहणगे? यार कादरी जी बाबा जी कहण लगे आ अज दे बंदे नूं तुसीं बाबे कहने हो ते तुहानूं शर्म नहीं आउंदी? जे अगर गुरु दी संतान नूं बाबा कह दिता तो किहड़ी तुसीं हद कायम करोगे? तुसीं हुणे कौन हद कायम करने वाले? जिहड़े सत्कारयोग ने साडे लई इन्ना ही बहुत है कि वो साडे गुरु दे पुत्तर ने। वो प्यो पुत्त दा मसला सानू विचारण योग नहीं है। गुरु समर्थ है। थोड़ी बहुत रूहानियत नूं समझो, सिक्खी नूं समझो ते मैनू सिखां तो वखरा ना समझो। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने गूटी लगा के भेजा है, ईमानदारी के नाल ही करके जावांगा। मैनू किसी की कोई परवाही नहीं है। जिहदा मन चाहे वो नाराज हो गए, वो नाराज हो गए। मैं ठहरा दरवेश, 1.5 रोटी और छोटी जी चटनी, ये मेरा गुजारा है। इस तो अगे जो कुछ भी है अल्लाह का नाम है, इस तो इलावा कुछ नहीं। माँ चुनी प्यो चुना, कितना बड़ा रुतबा है। फिर मैं तुहानू कहना कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने 10वें जामे जब आना है तो पहले माँ और प्यो चुन लिया है। माँ किदां दी माँ है, प्यो किदां दा प्यो है, अपना तो खुलासा फरमा दिता। हुण इत्थे कहा गया पहला नाम रखा गया त्यागमल। की नाम सी? त्यागमल। और तुसी आप दे बच्चों का नाम सही रख लिया करो कुड़ियो। टिंकू, पिंकू, चिंकू, पता नहीं की कुछ है, स्वीटी, फलानी ढिकानी। और भाई मैं एक नू देखा कि मोना जाए भाई आप पता तो करो किदा काका है। मैं क्या तेरा नाम की है? कहना टिंकू। मैं क्या हूँ हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सारे का बेड़ा करका पिया है। मैं क्या अच्छा तेरे प्यो का नाम की है? वो प्यो का भी उन्हें इदा का ही कोई दस दिता। मैं क्या यार हूँ फिर दादे का दस दे। जब उन्हें दादे का दसिया मैं क्या भी हाँ मुंडा तो सिखा दी है। नाम अच्छे रखा करो। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब नाम रख रहे ने त्यागमल, यानी त्यागन वाला। ते साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी वर्गा कोई त्यागी है दुनिया च? त्याग का यह हाल है कि जिस वेले गुरता गद्दी का समय सी उस वेले भतीजे नूं पहला गुरता गद्दी का तिलक गुरहाई तिलक हो गया है। आहा कितना संतोख है, मौज नाल। यानी उन्होंने अंदर रह के ड्यूटी कर रहे ने, उन्होंने अंदर रह के। ये मेरी अगली गल नूं मजबूत कर दी है गल। यानी आप सच्चे पातशाह ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने अपना प्यो पहले भेजिया 10वें जामे च आप आना है क्योंकि फैटा चढ़ना जालमा ने।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਖਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਕਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੜਕਦੇ ਰਹੋ, ਮੂੰਹ ਕੋਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.25 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, यह जी कोई गल नहीं है। अपने दिल के फुरने रोक के रखो, क्योंकि दुर्वेशा नू मालिक दिल की हिकमत अदा कर दिंदा है। दिमाग के फुरनिया नू ते दिल के आने वाले विचारां नू वो पढ़ लेंदे ने, उन्हां दी रिदम हुंदी है ऐदां दी। हुण गल यह है कि जिस वेले त्यागमल की गल आउंदी है तो त्यागी इदां दा त्यागी कि सानू तो बई कोई इदां दा त्यागी नज़र नहीं आया जिन्हें आप दा आपा त्यागा हो, जिन्हें उस वेले अपने भतीजे साहब नू गद्दी गां उत्थे अगे यानी भरा दे पोतरे नू गद्दी, और उस तो बाद जब 9वीं बारी आई है तो सच्चे पातशाह दा गुरहाई तिलक हो गया है। और वो सन है सन 1665 1621 विच यानी अवतार होया, 1665 विच गुरता गद्दी दा तिलक होया है। हुण सवाल यह है कि तेग बहादुर जिहड़ा नाम रखा गया वो किवें रखा गया? अजे एक ही गल है, एक गल होर खुलासा करके जावांगा। मैं कई बार बेनती की है कि मेरा जब दीवान रखना होया करे तो पब्लिक पुगलिक तो छड़ो, मैनू ऐ नहीं लगता कि तुसी 100 200 300 बैठे हो, बल्कि मैनू ए मेरा भरोसा है, विश्वास है और मनना है केड़ा कि जब तुसी रब दे प्यारियां दा जिक्र करते हो तो नूरानी खलकत हुंदी है, उन्होंने सारे मुरीद आए हुंदे है, वो आप सम्मुख आए हुंदे है। मैं थानू थोड़ी सुनान लग्या क्योंकि तुसी तो बैठे जरूर हो, तुहाडियां जिहड़ियां अखां हन ये अखां वो नहीं देख सकदियां ने जिहड़ा बाहरला है, अंदरला तो ओदा नज़र आउंदा है जब दिल दियां रोशन हो जांदियां ने। मैं कहना जिहदी गाथा है उन्होंने ही सुनाओ ताकि वो एक बारी थापड़ा दे दे, तोला मैदर कादरी पुत्र तू मेरा हक अदा कर गया है, तू मेरी कौम नू ईमानदारी दे नाल दस के गया है, तू भी कोई पराया नहीं मेरा है, क्योंकि गनी खान नबी खान तुहाडे नालों घट नहीं सी। ते इत्थे जद गल हुई तो सच्चे पातशाह किन्ने त्यागी हन। कदे भी असी नहीं सुनिया कि कोई भी बंदा कोई सिख अपने गुरु की उस्तत तो बिना निंदक बन के ओदी हद कायम कर दे। इन्नी ही हद है, वो की हद है? मैं तो एक हद तुहानू एक गल दे विच ही समझा देना हाँ, अखां बंद करो ते परमेश्वर है, और जे अगर अखां खोल दो तो वो गुरु है। इस तो अगे पीछे मैनू तो कोई और हद आउंदी नहीं जड़ियाँ तुसी कायम करी जाने हो। इन्ने दिन भोरे च नहीं रहा, इन्ने दिन फलाने थां नहीं रहा, इन्ने दिन फलाने थां नहीं रहा। और मैं कहना हाँ कि अगर वो चाहन तो एक ही टाइम दे विच लखां थावां ते जा सकते हैं। ये उन्होंने शक्तियाँ और ताकत मिलियां हुई ने, पता नहीं किहड़े ज्ञानी हैं, और साडे वर्गियां नू पीछे करन लई ओ मुसलमान ज्ञानी, ओ फलाना विद्वान, ओ टिमाका विद्वान। अगर एक गल भी मेरी तुसी गुरमत तो परा समझो तो मैनू इत्थों चक्के गुरुद्वारे तो बाहर मार दियो, मैं आप ही उठ के चला जावांगा। मैं तुहाडी जिहड़ी भावना है ਉਹਦੇ ਤੇ ठेस नहीं करनी, ਜਿਹੜਾ गुरु साहिब ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ रिश्ता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैंची नहीं चलाउनी। ਇਹ शोभा तो अजकल ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ मिली हुई है जिन्हां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, यानी जिस वेले करतारपुर ਦੀ जंग हुई है उस वेले सच्चे पातशाह ने इदा करके नज़र फरमाई, अन नज़रों के नाल मेरे साहिब ने नज़र समझ ली है, क्योंकि गुरु जिहड़ा है हर मामले च बेमिसाल हुंदा है, ज्ञान दे विच बेमिसाल हुंदा है, मैदान दे विच बेमिसाल हुंदा है, शक्ल दे विच बेमिसाल हुंदा है, ओदी कोई भी नहीं पाई जाती इस तरह की। जिस वेले सच्चे पातशाह ने अपने फादर साहब, अपने वालिद माजिद और गुरु देव तो सच्चे पातशाह तो 6वीं पातशाही तो जिस वेले उन्होंने इशारा किया है, भाई नज़र बाग में नज़र को हमने नज़र मिलाते नज़र से देखा, नज़र पड़ी जब नज़र के ऊपर, नज़र से हमने नज़र झुकाते नज़र को देखा। सच्चे पातशाह का इशारा समझ लिया है फर्जंद दिलबंद ने, सब तो छोटे फर्जंद ने, तेग वो पाई है जिदा कोई इंतहा न रही। हुण गुरु साहब जी ने तमगा दे दिता है, तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद आवे ताए। बोल दिया करो अगे, तुसी भी शरीक हो जाओ।
आखिरकार सच्चे पातशाह हुण इन्हां दा जिहड़ा रिश्ता होया है वह लखनौर दी शहजादी दे नाल होया है। माता गुजरी जी जिहड़े ने उन्हां दा जिहड़ा आबाई वतन है वह है लखनौर साहब, और ये जिहड़ी शादी हुई है ये हुई है करतारपुर साहब। और इहदा जिहड़ा विचोला है, विचोले ने बाबा श्री चंद जी साहेब, यानी सच्चे पातशाह ने कहा आपके पुत्र नूं आ मैं दोबारा आना है, माँ भी चुन ली है प्यो भी चुन लिया, दोनों नूं जोड़ दे। रिश्ता हो गया, जुड़ गए। आ देखो कितनी वड्डी गल है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने आना है, दशमेश पिता के रूप में आना है। उस तो पहला मां चुनी, तो मां किद्दां दी चुनी है, प्यो चुना है, तो प्यो किद्दां दा चुना है, समा वेखो समा किद्दां दा है। आखिरकार जदे रिश्ता हो गया है तो विद्वाना ने लिखा है, मैं तो अनपढ़ दा झल्ला जा फकीर हाँ, किसी ने लिखा 28 वरे बाद साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की आमद हुई। कोई लिखता 29 वरे, कोई लिखता है 30 वरे, कोई लिखता है 31 वरे, कोई लिखता है 32 वरे। ऐदा हो क्यों रहा है? वो ऐदा हो रहा है कि कुछ लोगों ने जड़ियाँ तरीखा लिखियाँ वो सम्मत लिख दी है, और कई ने जी तरीख लिखी है वो सन लिख दी है। और ऐदा करके हर साल दे विच 10 दिन आगे पीछे उन्होंने तारीखों का सिलसिला बन जाता है, एक दूजी का एक दूजी के नाल। यह रोला रप्पे की गल नहीं है, इन्नी गर्मी खाण वाली गल नहीं है। जिमें कि हनुमान जी की पूंछ नूं लगा दी अग, उन्होंने लंका ही साड़ दी। मैं कहना कि थोड़ा बहुत अगर अपने पल्ले दल्ले ज्ञान है तो शांति की गल करो, एकता की गल करो, जोड़न की गल करो। जिहड़ा जोड़दा है वो सिख है, जिहड़ा तोड़दा है वो दुष्ट है। जिहड़ा जोड़दा है वो रूहानियत वाला है, जिहड़ा तोड़दा है वो शैतान दा चेला है। क्योंकि सर्व सांझी बाणी, सरोवर एक, संगत एक, पंगत एक, यानी दशमेश पिता ने इन्ने टाइम बाद गुरु नानक साहब ने आके इन्हों चुन लिया, इस धरती के उत्ते आए। और जब आए तो हुण साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं मैं चलदा होया वेख्या, लड़दा होया देखिया, बोलदा होया देखिया, किरपा करदा होया देखिया। रब मेरे नाल गल्लां करदा सी ते मैं सुनदा सी, रब ने मेरे नाल गल्लां कीतियां मैं सुनिया। एक स्टेज ते मैं इदां ही करदा सी, ज्ञानी जी नूं लग गई अग, कहते ओए गल सुन अग पौड़े क्यों आकी जाना है, गुरमत का स्टेज है। मैं क्या थोड़े जे और गर्म हो जाओ क्योंकि थानू मैं ठंडा करन लई ठंडा लेके आया हाँ। कहते क्यों? मैं क्या साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की ने कहते इलाही बाणी। मैं क्या जिस वेले बंदा बाणी का पाठ करता है तो बंदा नहीं बोलता बल्कि परमेश्वर बोलता है, वो सुनता है। और गांधी ने 1000 रुपए के उत्ते क्यों नीत जमा रखी है? ये तो तेरी तकदीर च है, जो जाना है जो जाना है, जो आना है वो आना है। घट तो घट बाणी नूं समझ ले। जिस वेले आपां बाणी का पाठ करते हैं कौन बोलता है? परमेश्वर। सुनते कौन है? आपां। फिर मैं क्या चलता होया देखिया, कहता चले किवें, लड़दा होया देखिया, लड़े किवें। मैं वाह भाई कमाल की गल है। ज्ञानी जी तुहाडे ज्ञान नूं सलाम। सूरा 100 पहचानी है जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़ै खेत। तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दी बख्शिश करन वाले साडे पिता श्री साडे अबू जान। हुण तुसीं कहोगे ला बाप तो साडा है तो तू अपना अबू कह रहा मेरी मर्जी, इत्थे तो चल सकती है मेरी मर्जी। मैं अपना गुरु कहा मेरी मर्जी। लियाओ केड़ा ज्ञानी है जिहड़ा मेरे ते फतवा देगा, लेके आओ, फतवे का जवाब देंगा। और मैं जब मुसलमानों को जवाब दे दिता जेडे औरंगजेब नूं अपना अब्बा जान समझते सी, गडरिए नूं, मंगोल नूं, मैं उन्होंने दसिया बई उत्थे अमला ते होने ने ना वेड़े ना किसी ने तेरी जात पुछनी, किहड़ियां गल्लां करी जाना है, करमी आप अपनी कह नेड़े के दूर। हुण तुसीं वेखो इस शहजादे नूं देखो, इस शहजादा किहो जिहा शहजादा है। माँ देखो तो माँ बेमिसाल है, प्यो देखो तो प्यो बेमिसाल है। एक बारी मैं क्या कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बेमिसल ते बेमिसाल जिस वेले कालू मेहता दे घर गए और उस वेले उन्होंने नाल एक भैन हो गई, और जिस वेले इत्थे आए तो ना कोई भैन है ना कोई भरा, यानी बेमिसल ते बेमिसाल। हुण तेग बहादुर, हुण आपां बाणी नूं फिर देखो किदां जिस वेले सच्चे पातशाह दा प्रकाश सारे हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया च जाना शुरू होया। तेरी नस्लें पाक मैं हैं, बच्चा बच्चा नूर का।
तू है आईना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। किदां दा घराना है? भाई साहब भाई नंद लाल जी कह रहे ने जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह। मैं कहना कि अरबी फारसी संस्कृत इनू छड्डो नहीं। संस्कृत दे उत्ते सनातनियां दे प्यो दा कब्जा नहीं, अरबी दे उत्ते मुसलमानां दे प्यो दा कब्जा नहीं, फारसी दे उत्ते ईरानियां दे प्यो दा कब्जा नहीं। समस्तुल ज़बान है कि साहिब कलाम है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच अरबी है, फारसी है, संस्कृत है, सराइकी है, ब्रज है, बिदर है, बांगर है, सारियां भाषावां हन। यानी साडा कब्जा हर एक जहान दे विच है। जद के कुरान दे विच क्या गया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिन लियुबय्यिन लहुम। यानी रब ने जद अपने पैगंबरां नूं भेजिया, रसूलां नूं भेजिया, अवतारां नूं भेजिया ते ओ अपने अपने इलाके दे विच आए, आप दियां ज़ुबानां लेके आए। और जिस वेले साडे वाला प्यो आया वो सारियां ज़ुबानां नूं बोलदा सी। इस करके गल साफ हो गई है कि वो किसी एक खित्ते दा नहीं सी, किसी एक इलाके दा नहीं सी, बल्कि सारी कायनात दा जुमला कायनात दा सी। हुण जद गल ये हो गई, हुण आपां फिर आ जाइए। हुण अगली जिहड़ी पंक्ति है उहदे तक गौर करदे आ। आप लिये लड़ लाए दर दरवेश से। आहा किदां दा दरवेश है। ओ भाई एक जगह मैं कलकत्ते कथा करन लई गया, मैं उन लोगों को कहा भाई जिन्हें भी कोई मेरे खिलाफ वीडियो वाडियो, मैनू किसी मीडिया सीडिया की लोड़ नहीं है। इन्नल्लाह समीउन बसीर, इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ਇਹਦਾ अर्थ है कि ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ परमात्मा है सुनता भी है वेखदा भी है। ਇਹਦਾ अर्थ है वो ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਜਾਣਦਾ है, दिमाग की सोच जानता है। ਇਹਦਾ अर्थ है उस अकाल पुरख परमात्मा का हरेक थां कब्जा है। जिस वेले तुसी बोलते हो तो ये बाणी आकाश वाल जाती है, धरती वाल नहीं जाती, और इसी तरह सेव कर ली जाती है। इस दौर दे विच ये दलील देनी बड़ी आसान है। जे अगर ये आले और ये मोबाइल इन्हां चीज़ों को लैके आप सोचिए तो गल साफ है कि जिहड़ी आवाज़ है वो इलाही आवाज़ इलाही थई जाती है। तो वो गल की सी, मैं कहा मेरे खिलाफ किसी ने आडियो वीडियो कोई पाया, मैं गंदियां गालां कड्डांगा, देख लियो तुसी। ओ भाई एक ज्ञानी जी वो मेरे ते नशा झाड़न लगे अपने टाइम च, क्योंकि साडा ये भी तरीका बन गया है कि जिहड़ा अगला बोल के गया है उसकी मिट्टी पट्टो। मिट्टी क्यों पट्टोगे? थोड़े बस की है मिट्टी पट्टनी? साहिब हाथ वड्याइयां जिस पावे कुरान दे विच आया, वो तो इज़्ज़ मन तशा वो तो ज़िल्ल मन तशा। वो कहने लग गया दरवेश तो वो है, एक पंक्ति लिखी हुई थी, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। दरवेश का अर्थ वो की कर रहा है, सुनो जरा अर्थ कर रहा है दरवेश जो है ना रब दी बारगाह च पुट्ठा लमकिया हुंदा है जिवें चिमगद्दड़। मैं हसन लग गया, मैं क्या दरवेश है या चिमगद्दड़ है? आ की कहता है दरवेश दे ठुड्डे मारो ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ सालिक सादिक शौदे और शहीद शेख मशाइख काजी मुल्ला दर दुरवेश रसीद। रसीद दा अर्थ है पहुंचा होया, जिहड़ा रब दी बारगाह विच पहुंच गया वो दुरवेश है। और इत्थे कहा गया हक हक अंदेश। अंदेश कहते ने जानकार नूं, हक परमेश्वर नूं, हक हक अंदेश बादशाह दुरवेश। मैं क्या गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं बाद दुरवेश मानता है कि नहीं? कहना हाँ। मैं क्या फिर उन्होंने भी 14 जंगा क्यों कीतियां? मैं ठुड्डे मारो फिर जंग करनी नहीं। और मैं क्या अपनी मनगढ़ंत गल्लां ना करया करो काका जी। मैं क्या कितने जाके पढ़ के आओ। मैं क्या चाचे ताए होंदे आ तुहाडे कि नहीं? ये टकसाल च जाके चाचे ताए भी भुला दिंदे हो, माँ प्यो नूं भी भुला दिंदे हो, गवांढियां नूं भी भुला दिंदे हो। या किसी टकसालियां दी गल नहीं मैं कर रहा, जिन्हें भी जिस अदारे च तुसी चले गए, रिश्ते तो रिश्ते है। प्यो दा सत्कार करो, माँ दा सत्कार करो। जिहड़ा दयालु भी होए, जिहड़ा त्यागी भी होए, जिहड़ा भजनीक भी होए, जिहड़ा जोगी भी होए, यानी सारे गुण साहिब दे विच हन। जे अगर उन्हां दा हवाले दे नाल मैं जिक्र करां, जिस वेले एक गल चली सी कि 26 साल 9 महीने 13 दिन सच्चे पातशाह एकांत विच नहीं बैठे, उदों मैनू भाई बुरा लग्या। बुरा क्यों लग्या कि गुरु दे उत्ते जद आपां एक खामी नूं लभना शुरू करते हैं तो आपां वादा करते हैं, इजाफा होना शुरू हो जाता है। फिर दूजी
फिर तीजी, फिर चौथी, फिर पंजवीं। हुंदा की है कि तू तो आपदे आप नूं बाबा जी कहंदा है या भाई जी कहंदा है, जो कुछ भी कहंदा है, वो तू सिख भी नहीं रहिंदा। वो सिख ही नहीं हो सकता जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं प्रतख ना मनना, प्रगट गुरां की दे ना मनना, इन्हां दे एक एक विचार नूं सत वचन ना करे, जिहड़ा गुरु दे उत्ते किंतु कर गया ओदे पल्ले धल्ले की रह गया। हुण बाबा चिकना होना चाहिए है, गुलाम हैदर कादरी तो ऐं है, दीवाने तो दीवाने होया करते। मैं कि किसी मेकअप मैन तो मेकअप कराना है, मेरा मेकअप तो मेरी रूहानियत है। ता मर्द सखुन न गुफ्ता बाशद, आए वो हुनर न हुफ्ता बाशद। जब तुसी बोलते हो तो तुहाडियां खामियां और खूबियां सारियां सामने आ जांदियां ने। सच्चे पातशाह जलवा फरोज ने अनंतपुर साहब एक जथा आ गया है, वो बेचारे मजलूम ने, बेसहारा ने, उन्होंने किसी मठाधीश ने कोई पनाह नहीं दी है, किसी धर्मगुरु ने कोई पनाह नहीं दी है। जुल्म जबर हो रहा है, सरकार ने हाहाकार मचाई हुई है। अज भी कुछ माहौल इदा ही है कि नहीं? तो मैं सोचता सी कि औरंगजेब नूं भी दोबारा आना पै गया ना, आवागमन तो हैगी है, यह दोबारा आ गया। गल इन्नी है कि चोला बदल लिया, हाँ बदल बदल के आ रहे ने, रब खैर करे। की कुछ हो रहा है हुण, जिन्हां दा हक है उन्हां दा हक भी खोया जा रहा है। यानी डेमोक्रेसी का रोला है, और भाई जिसनों आपां बहाया है वो अपना कब्जा जमा के बैठा हुआ है। मैं बहुता इस पासे में तुहानूं लेके जाना नहीं चाहता। आखिरकार जिस वेले आए गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी कोले वो आए, वो क्यों आए, किवें आए, आओ आप गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी को पूछते हैं। आप लिए लड़ लाए, आप बुलाए, सच्चे पातशाह ने आप बुलाए, वो आप ही आप है। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तो साहिब दुर्वेश भी है। समझ गए कि जिस वेले वो आए तो उन्होंने उत्ते एक जुगती बनाई, एक दया का प्रोग्राम होया, क्योंकि गुरु साहब एक आखिरी दर्जा जिहड़ा शहादत का है उसनों भी हासिल करना चाहते सी। अजकल आप शहादत तो डरते क्यों आ? उर्दू के 2 शेर सुनान लग्या, वो भरावो ये ना कह दिए, मेरे बड़े प्यारे ने पाल सिंह जी कह के यार बाबा जी ने टाइम की खुला दिता सी, उत्थे जम के ही बह गए। हुण जे अगर बस हो गई है तो छुट्टी कर देना है। चलो खैर ठीक है। जिस वेले वो आए, इन्हां नुकात की गल है ना, इन्हां नुकातां नूं समझो। उस तो बाद कोई भी लली छली तुहाडे ईमान दे उत्ते डाका नहीं मार सकता, तुहाडी शरधा ते डाका नहीं मार सकता, तुहाडी शख्सियत दे उत्ते डाका नहीं मार सकता। सच्चे पातशाह नूं पहला पता सी, 6वीं पातशाही नूं पता सी, ताई तो मत्था टेकिया, वंदना की। और सच्चे पातशाह नूं पता सी कि आखिर मैं अपना शीश कित्थे जाके देना है। और इस गल नूं मैं एक शेर तुहानूं सुनाना है। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, कोई और रास्ता ही नहीं। सिखो जे अगर थानू पता होए कि असी कित्थे मरना है, फिर तो बचन की आरजू करियो। हाँ, जे अगर पता है कि मौत के बिना तुसी परमेश्वर के द्वार नहीं जा सकते, तो सच ते खड़ जाओ, अड़ जाओ, और इदा अड़ो कि एक मौत नहीं बल्कि कोई जादूगर आके थानू 70 बारी जिउंदा करे, तो उसनू कहो कि मामला वही है जिहड़ा पहले सी, टस तो मस नहीं होना, फिर जान हाजिर है। मैं थानू शहीद का एक अपना फलसफा जो कुछ मैनू रूहानियत तो हासिल होया वो तुहाडे नाल साझा कर देना। अकाल पुरख ने कहना शहीद नूं दस तैनू की चाहिए है, वो कहता है वही मौत चाहिए है, वही दुनिया चाहिए है। यानी शहीद नूं उस मौत का आनंद इन्ना आता है कि जिस वेले दुश्मन की किरपान उठती है उस वेले आप परमेश्वर उहदे सामने दर्शनां नूं आ जाता है, दीदारां नूं आ जाता है, और वो जिहड़ी सुरत है अपने परमेश्वर दे नाल जुड़ जाती है। किसी भी सट की तकलीफ नहीं, किसी जख्म की तकलीफ नहीं, जुगती बनाई सच्चे पातशाह ने। मैं कहना ज्ञान तो परा अनेर है, दान बिना कष्ट नहीं कट्टे जाते। हुण सच्चे पातशाह की यादगार आए गुरुद्वारा साहब है, होना तो ये चाहिए है कि असी इन्ना सोहना बनाइए, इन्ना वड्डा बनाइए। मैं एक बारी एक वीडियो वायरल किया, मैं क्या भाई देखो मुसलमानों मसीदां नूं मोडिफाई करना चाहिए, एक लंगर खाना होना चाहिए, एक मुसाफिर खाना होना चाहिए है। यानी जे अगर इसनूं रवदा कर कहते हो तो उत्थे लंगर तो फ्री मिलना चाहिए है, रिहाइश तो फ्री मिलनी चाहिए है। जे अगर असी सच्चे पातशाह दे एक एक एक
कतरा खून का बदला नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने शहादतों का बदला नहीं होंदा सच्चेओ। और जे अगर शहादत दी है तो ही कुछ होया है। आखिरकार मैं हुण समाप्ति वाल आ जाना और कहा कि जाओ जाके कह दो औरंगजेब नूं कि जे अगर वो मैनू मुसलमान बना लेगा तो सारे हिंदुस्तान के जिन्ने भी पंडित ब्राह्मण और लोग ने वो मुसलमान हो जाएंगे। हुण भुल्लां चूकां दी खिमा परने दी हो गई तैयारी। कहते बाबा जी हुण साडी कर दो छुट्टी। चलो भाई छुट्टी कर दिन्ने आ। तुहानूं यकीनी तौर पर कई सारिया गल्लां तलख लगियां होणगियां, उन्होंने इदां ही समझ लेना है कि जिस वेले कोई गर्म गल हुंदी है तो गर्म पानी भी अग नूं ठंडा कर दिंदा है। उन्हें तुहाड़ियां वज्र कुरायतां नूं मुकाउना है, तुहाड़ी दुष्ट सोच ते विचार नूं दूर कर देना है। ऐदां दे बलिदानी जिन्हां दे पोतरियां दी कुर्बानी, जिन्हां दे पुत दी कुर्बानी, जिन्हां दे सिखां दी कुर्बानी, जिन्हां दी आप दी कुर्बानी, इन्हां कुर्बानियां दा आपां मुੱਲ नहीं दे सकते। अज जे अगर एक कौम सरबुलंद है तो वो सारी किरपा है साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दी। जे अगर अज इस मुल्क दे विच अमन अमान है, यह सारी किरपा है साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दी। तो क्यों ना इस प्रकाश पर्व नूं खुशियां दे नाल मनाइए, क्यों ना उन्हां दा एहसान मनीए, क्यों ना नतमस्तक होइए, क्यों ना उन्हां दा गुण गाइए, क्यों ना उन्हां नूं चेते रखिए, क्यों ना उन्हां दा शुकराना अदा करिए। जब शुकराना अदा करोगे तो समझ लो रब दे नेड़े चले जाओगे। ज्ञान बिना हनेर है, दान बिना मुक्ति नहीं मिलती। अज सिखां ने लोग कहने सिखां दा राज है कि नहीं है, हैगा। 105 मुल्कों के विच केसरी निशान झुल रहे हैं। साडे सिखां ने जब भी राज किया है दिलों के उत्ते किया है, शरीरों के उत्ते नहीं किया। सच्चे सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब उन्होंने जिस वेले अपना तख्त जिसनों आज अकाल तख्त कह के सारे सिख नूं उस हुक्मनामे नूं मनना पैंदा है, वो सवा नेज़े उच्चा सी जहांगीर दे तख्त तो। और उस तख्त दे उत्ते कौन सी? वो शहनशाह जिहड़ा दिलों दे उत्ते राज करदा सी। अज भी जिहड़े निशान ने बिम बेमिसल ते बेमिसाल ने 105 मुल्कों के विच निशान झुल रहे हैं और लोगों के दिलों ते अज सिख कौम राज कर रही है। ते केड़े कहंदे कि सानू सिर्फ इन्ना छोटा जा राज चाहिए, सानू तो राज करना आउंदा है, लोगों के दिलों ते राज करनगे। सानू ये तालीम दिती हुई है, ये सिक्ख्या दिती हुई है, 105 मुल्कों के उत्ते राज करते हैं। और उस तो बाद जिहड़ी मेरी पहली भविष्यवाणी है, और मेरा चैनल एक मैं बनाया सी, एक चैनल बनवाया मैं, क्योंकि मैं तो वर्कशॉप भी नहीं आता पूरा चलाना, ये विद्यार्थी चलाते हैं। मैं रह गया कंगाल अंग्रेजी दे विच, और जिहड़ी रट्टी सिट्टी जी मार देना ना, ऐ ना समझ लियो कि बाबे ने अंग्रेजी पढ़ी है। मैं तो अंग्रेजी का अखर एक भी नहीं आता। हाँ, गुरमुखी हो गई, पंजाबी हो गई, अरबी हो गई, फारसी हो गई, उर्दू हो गई, संस्कृत हो गई, यही भाषावां मैं पढ़िया ने, अंग्रेजी नहीं पढ़ी। क्योंकि साढ़े जमाने च अन्ने मौलवी हुंदे सी, वो कहते अंग्रेजी सीखनी नहीं, अंग्रेजी सीखोगे मदरसे च बाहर कट देना है। और वही सोच मेरी बन गई सी। पर किरपा है दशमेश पिता दी कि उन्होंने मेरी अखां नूं रोशनी बख्शी कि मेरे अंदरों वो जिहड़ियां मेरी दिल दियां अंधियां हो गई सीगियां वो खुल गई। अज भी असी राज करते रहांगे। और अज सारी दुनिया का बच्चा बच्चा कहता असी सिखां दा एहसान नहीं दे सकते, असी सिखां दा एहसान नहीं दे सकते। तो यह की है? यह है प्रेरणा। जिहड़ी प्रेरणा सानू दिती गई है, अपनी प्रेरणा तो पीछे नहीं हटना है। और जिन्ने भी स्थान है, हुण मेरी गल करोगे, मैं आप मैमोरेंडम दे के आया सी गवर्नर साहब नूं। मैं क्या सरकार थई मेरी आवाज़ पहुँचानी है कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का जिहड़ा प्रकाश पुरब है, एक खास तौर पर सनातनियां दे खर्च तो बनाना चाहिए है और सारे गुरुद्वारियां नूं ऐड मिलनी चाहिए है और पूरा धूमधाम दे नाल मनाना चाहिए है। पिछले दिनों असी करनाल एक प्रोग्राम करके आए हैं, पंडितां दी धी है, अनुराधा वकील है, उन्हें करवाया है, बहुत वधिया करके सोना उपराला करवाया। और दिन रात वो लगी हुई है कि असी इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकते, पर धन्यवाद करने का तरीका यही है कि साहिब दे दिन मनाओ। गुरबाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे एक एक अखर नूं सत 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 करके जनो इत्थे नतमस्तक हो जाओ। भुल्लां चुकां दी खिमा। फिर सारिया संगतां नूं, सारे सामाजीन नूं इस प्रकाश पर्व दियां कोटान कोट मुबारक। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं, साडे इत्थे जिहड़े वजीर साहब ने उन्हां नूं
ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वदाया राग रतन परिवार परियां गावणिया शब्दों तगावो हरि केरा मांझ जनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रोर नाले नाल रो तू मन मेरे रूप सब विचार अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना नागला समरथ सुवा तो क्यों मनो विचारे कह नानक मन मेरे सदा रोहर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरे सब किछ है जिस दे में सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन बसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक दे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सा भगवान कर शांत सुख मन आए वसया दिन इच्छा सब बुझाइया दा कुर्बान किता गुर बेटो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कार सुपागे कार सुभागे शब्द वाजे काला जित कर तारिया पंच दूत तुत वास कीते काल कंटक मारिया करम पाया तिस दिन को ते नाम हर के लागे कह नानक तन सुख होवा तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सरते पूरे गुर ते जान सुनते पनित कहते पवित्र सतगुर रया भरपूरे वंत नानक गुर चरण लम बाजे अनहद सूरे गुर तेग बहादुर सी मरिया 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 करना निधि आवे ताए गुर तेग बहादुर सी मरिया गुर तेग बहादुर सी मरिया ताए गुर तेग बहादुर सी मरिया गुर तेग बहादुर सी मरिया सब थाई होए सहाय गुर तेग बहादुर सी मरिया गुर तेग बहादुर सी मरिया श्री हरि कृष्ण त्याय श्री हरि कृष्ण त्याय जिस डिठे सब दुख जाए गुर तेग बहादुर सी मरिया गुर तेग बहादुर सी मरिया श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत बहात दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाजे धर्म दूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया 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 ओते गए ने मशक्कतां काल जिन्हां ने तेरा नाम जपया ओता गए ने मशक्कतां काल जिन्हां ने तेरा नाम जपया
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।